हेलो गाइस, व्हाट्स अप। तो हल्के हैकर टॉक्स में मेरी प्यारी जनता का दोबारा स्वागत है। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने बहुत यंग उसमें इस फील्ड को चुना। और वो टैरो कार्ड रीडर है, हीलिंग करते हैं, आपका न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। और तो आइए मिलते हैं वैष्णवी उपाध्याय से। So, my name is Vaishnavi Upadhyay, and I'm a professional tarot card reader, astrologer, numerologist, feng shui master. It's been quite more than 3.5 years now that I've been taking this professionally, and I have done my courses in pranic healing, in astrology, my master's in tarot too. So, if you feel drawn towards this episode, the vibration of this episode, then definitely you can connect with me. And all in all, I feel that spirituality is an aspect that a lot of people do not really talk about, do not consider it. But I would really want people to know about this more so that they can holistically change their life. Health issues के बारे में बात करते हैं, हम physical issues के बारे में बात करते हैं, but spirituality, not a lot of people give importance to it. Hi Vaishnavi, Hi. how are you? Hello, I'm good. And how are you? Yes, All doing good. good. Normal conversation, Yes. right? Thank you so much for coming in Seriously, our thank you. episode. और वैष्णवी, तो मेरा क्वेश्चन है सबसे पहला आपसे कि कैसे लगे इतनी यंग उसमें आपने ये इस फील्ड को चुना। आप हीलिंग भी करती हैं, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और टैरो कार्ड रीडर हैं, और न्यूमरोलॉजी भी करती हैं। तो कैसे लाइक चारों इतने सारी चीज़ें कैसे इतनी कम लाइक उम्र में आपने, और क्या आपको इंस्पायर करा इस फील्ड में आने का आपको? So basically, बहुत young age से I did feel drawn towards spirituality. Spirituality as in religious एक belief था. मेरे घर से भी background ऐसा ही रहा है, पूजा पाठ वाली family रही है. So I never questioned it as such कि क्या पूजा पाठ ये वो होता है, but simply चले जाते थे, हाथ जोड़ लेते थे सब कुछ. So back in time, I went through a whole phase where I was on medication for epilepsy. Okay. Yeah. So उस दौरान still I had it at a very young age. उस time नहीं पता था. But once I think so, I crossed 15 or 16 years of age. I kind of got fed up with this thing कि मेरे को रोज रोज medication लेनी पड़ती है, and I had those medication for 15 years. So it was like way too much period for me to have those medications. Then I thought कि यार इसके अलावा तो कोई reason होगा. If something is happening to me, then how? How come? और ये हो रहा है तो मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, ठीक क्यों नहीं हो रहा? Why isn't any doctor able to heal me? Why is it so? So ऐसे ही करते करते I came across this article, और बहुत मैंने generally ऊपर से पढ़ा, and then they told, it was written over there कि जब आपकी third eye बंद होती है, third eye is somewhere located over here above your temple area, तब आपको epilepsy issues हो सकते हैं, migraine issues हो सकते हैं, a lot of people do form tumor as well, brain tumors भी होता है. So now I thought कि medication को इतने साल दे दिए हैं, थोड़ा spirituality को भी देते हैं, let's try this. अब Okay. health issue में ना ये होता है कि जब बंदा किसी चीज़ के थ्रू सफ़र करता है ना, वो सब कुछ करता है. सब कुछ करता है, सब जगह जाता है वो। So after doing and getting done with medicines, I was like, अब spirituality में आते हैं. So slowly and steadily I started my path into spirituality ऐसे करके कि कभी कुछ meditation देख ली, follow करने की कोशिश कर ली. हुआ नहीं हुआ बात अलग है, but कोशिश की. And later on, although I was doing right or wrong, I don't know. But within a year, I did my MRI again, and my calcified, जिसकी वजह से मुझे epilepsy थी, that was gone. ओके, Wow. वेरी। So for me, that was a proof, a reason for me to start and get started with spirituality in general. Now once I got into it, तो मुझे समझ में आया कि भाई इसमें तो बहुत कुछ है, टैरो भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी भी है. अब मैं एक सब्जेक्ट पढ़ूँ तो मुझे दूसरा सब्जेक्ट बुलाता था कि नहीं थोड़ा मेरा भी, अब मुझे इंटरेस्ट भी बनता था. सो ऐसे करते करते आई डिड गेन छोटी छोटी नॉलेज हर एस्पेक्ट में. And then later on, I decided that I'm going to pick 4 of the paths. Main as tarot, then astrology, numerology, and one more is feng shui. क्या क्या? Feng Feng shui. Shui. Feng shui is
चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, ओके जो आपको आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताता है कि अगर इस एरिया में हमारे घर के, आपने देखा होगा सिर्फ वुड है, क्यों है? बिकॉज ये वाला एरिया जो आता है ये आपका हेल्पफुल पीपल जोन आता है घर के अंदर, ओके और अगर इस एरिया में वुड होता है सो दैट मीन्स आपको एक्सटर्नल हेल्प बहुत मिलती है, लेबर की हेल्प आपको बहुत मिलती है, बहुत आसानी से मिलती है। आर यू गेटिंग इट? राइट Yes. सो ये 2-3 चीज़ें थी जिनको मैंने फिर पिक कर लिया कि मैं करके देखती हूँ। देन बाय गॉड्स ग्रेस कोविड हिट हुआ एंड आई गॉट सो मच टाइम टू माई सेल्फ राइट कि वहाँ पे मेरे को ऐसा था कि अब थोड़ा टाइम यूटिलाइज करते हैं। उससे पहले आई वॉज डूइंग इट जस्ट फॉर फन, अपने मजाक मस्ती के लिए मजाक कर मस्ती लिया, के लिए। किसी और के लिए नहीं करती थी मैं, अपने लिए अपनी या सिर्फ अपने लिए। और मेरे को ज़्यादा रिसर्च में था कि अगर ये एस्ट्रोलॉजी में ये बता रहे तो क्यों बता रहे हैं, वाई चढ़ इज इट गए। सो, वाई इज इट सो। सो बिफोर एंटरिंग अल्टीमेटली इनटू स्पिरिचुअलिटी, पूरी तरह घुसने से पहले मेरे को वाई बहुत ज़्यादा था, क्यों क्यों है ये? अगर बोला जाता है कि इसकी रेमेडी ये है तो क्यों है, वाई इज इट सो? देन लेटर ऑन डिगिंग अप थिंग्स, आई फील कि कोविड वाले टाइम ने एक बड़ा अच्छा पुश दिया मेरे को, टाइम फ्रेम भी दिया कि हाँ भाई खूब सारा टाइम है करो, एंड दैट्स व्हेन आई फिगर्ड आउट कि सीरियसली लेना है। स्टिल आई वाजंट श्योर कि इसको ही अपना करियर पाथ चूज करूंगी, बट एज आई डिड, वही होता है ना कि एक अच्छा काम करते हो तो चीज़ अपने आप बनती रहती है, रास्ता अपना बनता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सो वही चीज़ मेरे साथ कहीं ना कहीं हुई, और टिल नाउ आई डोंट नो, मेरे को ये लगता है कि अगर मैं आज पीछे का देखूँ ना तो मुझे सिर्फ वही टाइम याद आता है कि मैं अपने दूसरे वाले घर में थी, पेंट हाउस में थी, और वहाँ बैठ के आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अब क्या करना है, अगर टैरो भी है और एस्ट्रोलॉजी भी है, क्योंकि ये बहुत वास्ट फील्ड है, आपको पता नहीं होता कहाँ से शुरू करो, कहाँ जाना है। खत्म करो बिल्कुल हाँ। तो टैरो और एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है? लाइक टैरो कार्ड रीडिंग इज समथिंग डिफरेंट, एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग डिफरेंट, तो डिफरेंस क्या है उसमें? एब्सोल्युटली। तो एस्ट्रोलॉजी आपका बेसिकली कैलकुलेशंस होती है प्लैनेट्स के प्लेसमेंट के ऊपर, ओके? हम सबके बर्थ चार्ट्स होते हैं, उस टाइम उस नक्षत्र के अंदर आपके प्लैनेट्स एक सर्टेन वे से प्लेस्ड होते हैं, उसकी जो आप कैलकुलेशन करते हो उसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है? प्लैनेट्स के नेचर को जब आप पढ़ते हो उसको भी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उस नेचर ऑफ प्लैनेट का आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस क्या पड़ेगा वो भी एस्ट्रोलॉजी होती है। वेराज टैरो इज कम्प्लीटली एनर्जी बेस्ड। जैसे हीलिंग एक बहुत एनर्जी बेस्ड चीज़ होती है, उसके लिए आपको पैनल्स की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए आपको कुंडली की ज़रूरत नहीं होती। सिमिलरली टैरो भी ऐसे ही होता है कि आप सिर्फ एनर्जीज, उस इंसान के साथ आप बैठते हो एंड यू चार्ज योर कार्ड्स थ्रू स्पीकिंग, ऑब्वियसली वो आपको आपकी अपनी लाइफ के बारे में बताता है, and then you get to know more about the person. आप चार्ज करते हो कार्ड्स and then you can simply place questions. So it is completely energy and intuition based. तो जैसे आपके पास काफ़ी आपके क्लाइंट्स आते होंगे जो एस्ट्रोलॉजी की बात आने, तो उसमें उपाय होते हैं खूब सारे कि आप जैसे आजकल हर कोई कर रहा है, मैं देख रहा हूँ आजकल उन लोगों ने बिजनेस भी बना लिया है, ये सब चीज़ मुझे ऐसा लगता है। हर कोई देखो टैरो कार्ड, हर कोई बैठ जाता है, एस्ट्रोलॉजर है। तो ये आपका क्या होता है, लाइक आप थोड़ा कुछ डिफरेंट बताते हैं वही चीज़ उपाय कि ये चीज़ ऐसे रख दो, वहाँ पे वो तेल चढ़ा दो, तो आपका कैसा रहता है? सो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं बहुत अल्टीमेट एंड पे जाके अगर रेमेडी देती हूँ तो देती हूँ। उससे पहले मैं ट्राई करती हूँ कि आप अपना वे ऑफ लिविंग ही ठीक कर पाओ, क्योंकि क्या होता है ना, जब आपके साथ कुछ बुरा हुआ, कोई आपके पास आता ही तब है जब कुछ लाइफ में केओस चल रही होती है, अच्छे टाइम पे कोई नहीं आता, जब बिल्कुल मेस्ड अप होता है। मेरे परसेप्शन में मुझे ये लगता है कि अगर कोई प्लैनेट आया भी आपको तंग भी कर रहा है ना, इट इज़ फॉर अ रीज़न, इट इज़ फॉर अ रीज़न, अच्छा राइट? सो मैं रादर देन मैनिपुलेटिंग उसके प्लैनेट्स, पहली चीज़ आप वो कर भी नहीं सकते, हम सिर्फ इंसान हैं, वी आर अ वेरी स्मॉल एंटिटी इन दिस वास्ट यूनिवर्स। आप करने की कोशिश करोगे नहीं कर पाओगे, इसलिए गलत इफेक्ट भी पड़ते हैं रेमेडीज के। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो कर लेंगे लेकिन नहीं होता। कैसे कर सकते हो आप? वो चीज़ आपसे बहुत बड़ी है, पावर में भी बड़ी है, साइज में भी बड़ी है। सो व्हाट आई डू इज आई टेल देम कि आपकी ही गलत सिचुएशन में देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आपकी तरफ से ही। आई जस्ट गिव देम अ पाथवे, अ गाइडेंस और एक पुश भी कि मैं यहाँ पे हूँ, तुम करो तो। सो मोस्टली मेरे यही होता है कि आई डू गिव देम अ पाथवे। बाकी आई फील प्रेडिक्शंस भी इन्वॉल्व होती हैं इन सब चीज़ों में, बट उसका बहुत छोटा रोल है प्रेडिक्शंस का। मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से। जितना आप अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हो उतना कोई नहीं कर सकता, ना कोई आपके लिए कर सकता है, ना कोई रेमेडी कर सकती है। अच्छा, तो ये टैरो कार्ड्स वैसे लोग जो सोचते हैं, मैंने देखा है लोग, काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये इंडिया से आया है, तो ये कौन सी
कंट्री से आया और किस रिलीजन से ये टैरो कार्ड आपका आया है? मतलब एक बेसिक्स क्या है टैरो कार्ड के, अगर कोई हमारी ऑडियंस अगर और पहले टैरो जानना कार्ड चाहे। को लाइक टैरो कार्ड अभी है, कुछ पहले कुछ और नाम से जाना जाता था टैरो कार्ड को। सो देखा जाए तो टैरो की कोई ओरिजिन नहीं है। अगर आप भी डिग करना चाहोगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन स्टिल एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। इट इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क फॉर एवरीबडी। बट जितना हमें पता है दैट वाज इज कि बैक इन 14th सेंचुरी टैरो कार्ड्स आए थे, एंड द फनी पार्ट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट इट वाज नेवर यूज्ड टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर। दे वर लाइक नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स, जैसे हम लोग ताश के पत्ते खेलते हैं, सिमिलरली उस तरीके से लोग उससे अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए खेलते थे। नाउ लेटर ऑन व्हाट हैपेंड इज दैट उस टाइम की रॉयल फैमिलीज जो होती थी, दे गॉट फैसिनेटेड बाय दिस कि उसमें पिक्चर्स हैं, लोग बने हुए हैं। तो वो क्या करते थे, अपने कारीगरों को बोलते थे, और पेंटर्स जो उसके टाइम पे होते थे उनको कहते थे कि हमारे जो फैमिली के लोग हैं ना, आप ट्राई करो कि उसमें उनकी पोर्ट्रेट आ जाए, ताकि वो एक उनके लिए सॉर्ट ऑफ एक मेमोरी या मोमेंटो होता है वो उनके पास हो, उनके फैमिली की एक रिजेम्बलेंस उनके पास हो। देन लेटर ऑन बहुत सारी थ्योरीज ये भी कहती है कि कुछ कुछ सिविलाइजेशन की चीज़ थी ये। काफ़ी लोग कहते हैं कि जिप्सीज जो होते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उन्होंने इन्वेंट किया टैरो, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। सो टैरो की ओरिजिन किसी को नहीं पता, बट येस लेटर ऑन आफ्टर 16th century people started using tarot as a divination method. उसमें कुछ सीक्वेंस वगैरह होते हैं ना, Right. फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड एक जर्नी दिखाई Right. जाती है। Right. बट मैंने सुना है टैरो कार्ड इटली से आए। Really? हाँ, लाइक मेरी जो स्टडी, मैंने जो जितना पढ़ा नहीं, है। बिल्कुल हो सकता है, क्या पता आपने सुना हो, क्या पता आपने पढ़ा हो, बट आई एम गोना सजेस्ट यू कि आप और थॉट डिग करना कि इटली से आए तो कौन लाया। हाँ, लाइक हु इन्वेंटेड टैरो कार्ड, लाइक एग्जैक्टली, बट नोबडी इन्वेंटेड इट। किसी को उसका फर्स्ट सोर्स नहीं पता, दैट आई कैन राइट इट एंड गिव इट टू यू इन रिटन, कि आपको उसका ओरिजिन पता ही नहीं चलेगा। देयर आर आर्टिस्ट जिनके नाम लिखे हुए हैं, जिन्होंने पेंट किया था, पेंट करा है, लाइक हाँ। बट किसने बनाया, यू डोंट नो दैट। तो टैरो कार्ड को पहले टैरो ही बोलते थे, लाइक मैंने जो पढ़ा है, मैं अपनी नॉलेज में बता रहा हूँ कि प्लीज शेयर। लाइक टेरॉक्स भी बोलते थे, टेरोची भी बोलते थे, ऐसा ये है क्या, लाइक ये टैरो कार्ड? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, लाइक मेरे अवेयरनेस में नहीं है, बट बिल्कुल हो सकता है। द थिंग इज कि टैरो ना पूरे वर्ल्ड के अराउंड में फेमस है। इट इज़ नॉट जस्ट इन इंडिया। इंडिया में इनफैक्ट बहुत ही कम स्केल पे, और इस साल से ज़्यादा हुआ है 2023 से। अगर आपने भी देखा हो तो इंस्टाग्राम पे अब हर कोई टैरो करता है, या हर कोई कार्ड्स पुल आउट करके आपको दिखा रहा है कि भाई ये होने वाला है, बट इससे पहले तक इंडिया में इतना नहीं था। सो द थिंग इज, जैसे हम टैरो यहाँ का शब्द है, शायद हिंदी में या संस्कृत में हम टैरो को कुछ और बोलें। सिमिलरली जैसे आप टेरॉक्स बोल रहे हो, क्या पता वो किसी लैंग्वेज में टैरो का ही नाम हो। राइट राइट राइट। आर यू गेटिंग इट? राइट। यस। तो जैसे टैरो में मैंने सुना जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स के अलावा भी और कुछ होता है? क्योंकि जैसे एस्ट्रोलॉजर का, हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, हम उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, वो उसका आंसर भी बताता है, प्लस वो रेमेडी जैसे बता रहे थे, कुछ रेमेडी ऐसे करो ये करो, तो ऐसे सिमिलरली टैरो कार्ड में भी होता है? बिल्कुल। पहली चीज़ तो कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर हेल्थ, लव, फैमिली, करियर, फाइनेंसेस, मोस्टली जो भी चीज़ें जहाँ पे आपको लगता है ना कि इशू है, कंसर्न है आपका, आप वो चीज़ टैरो में पूछ सकते हो। Okay. Secondly, a lot of times the client is not ready to ask certain questions, या उनके पास questions ही नहीं होते। जैसे कोई नया बंदा है, उसको पता ही नहीं मैं क्या पूछ सकता हूँ, थोड़ा ब्लैंक हो जाता है। So then what I tell them is, मैं उनकी एनर्जी की रीडिंग करती हूँ एक, ओके, कि उनका फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट, स्पिरिचुअल स्टेट एंड इमोशनल स्टेट कैसा है। और जैसे मैं वो बताती हूँ, वो बंदा कहता है हाँ यही है, फिजिकली मैं ऐसा फील करता हूँ, इमोशनली मैं ऐसा फील करता हूँ। देन द पर्सन गेन्स अ लिटिल बिट मोर ट्रस्ट, देन दे स्टार्ट ओपनिंग अबाउट देयर लाइफ, कि हाँ यार फिजिकली मेरे को लगता है कि मेरे को बुली किया जाता है, अब इसका मैं क्या करूँ। देन आई गिव देम द आंसर। सो दिस इज द होल प्रोसीजर हाउ इट गोज, कि अगर किसी को नहीं भी पता कि क्या पूछना है, यू कैन ऑलवेज कम इन फॉर एन एनर्जी रीडिंग। ओके। बट टैरो कार्ड किस टाइप की स्पिरिचुअलिटी है, लाइक किस व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज टैरो कार्ड? टैरो कार्ड हैज नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी, टू बी ऑनेस्ट। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ। आप भी स्पिरिचुअल हो, आप भी स्पिरिचुअल हो, मैं भी स्पिरिचुअल हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हाँ ये मेरी बॉडी है,
मेरी बॉडी के अंदर एक सोल भी है, ठीक है, ये मेरी स्किन है. यू आर अवेयर ऑफ योर बॉडी एंड योर बीइंग. आपको पता है आपने कौन से कपड़े पहने हैं, सोच के पहने हैं, इंटेंशनली पहने हैं. बिकमिंग इंटेंशनल, बिकमिंग अवेयर ऑफ योर लाइफ इज स्पिरिचुअलिटी. बट जहाँ तक टैरो की बात है, टैरो इज जस्ट वन डेविएशन मेथड. हम ये सोचते हैं कि एक हायर सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे ऊपर जो सब कुछ कंट्रोल करती है. वी ट्राई, वी आर जस्ट नियर ह्यूमंस, वी जस्ट ट्राई कि हम उनसे कनेक्शन बना पाए. एंड देन वट एवर वी आर सीइंग वी फील दैट हायर पावर वांट्स अस टू सी. जैसे हम कहते हैं ना कि ऐसा हो गया, वो होना था इसलिए हुआ. सिमिलरली हमारा बिलीफ ये होता है, मेरा तो यही है कि जो मैं देख पा रही हूँ वो उसकी वजह से देख पा रही हूँ, मुझे चाहता है कि मैं वो देखूँ. या जैसे आपने कभी टैरो रीडिंग ली होगी, तो जो उन्होंने बोला होगा तो आपको वो चीज़ रिलेट की होगी. उसको वो सब कैसे पता, इंसान को वो सब कैसे पता? जस्ट बिकॉज आई बिलीव कि वो बुलवाना चाहता था. वी आर जस्ट अ मीडियम. टैरो इज जस्ट अ मीडियम थ्रू विच आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट. द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू यू. राइट. राइट. और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज़ लाइक एस्ट्रोलॉजर भी अपनी वीडियोस बना के डालते हैं. बिल्कुल, और थोड़ा fancy टैरो में कार्ड, डालते हैं. हाँ, टैरो कार्ड रीडर्स भी डालते रहते हैं, बनाते रहते हैं. तो अब एज अ इंडिविजुअल मैं कैसे पता करूँ भाई कौन फेक है कौन Right. रियल है? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फेक चल रहा है. और हर चीज़ में, टैरो कार्ड में हर चीज़ में भाई, आपका लव में आपका ब्रेकअप क्यों हुआ, आपका यहाँ तक ही बताते हैं यार लोग. तो ये क्या सच है क्या गलत है कि लोगों को ये पता, ये भी टैरो कार्ड बताते हैं कि ब्रेकअप क्यों हुआ और डिवोर्स क्यों हो रहे हैं, मुझे बीमारियाँ क्यों लग रही हैं, कैंसर, सब प्रेडिक्ट करता है टैरो कार्ड. बिल्कुल. सी, टैरो इज अ पैटर्न ऑफ लाइफ. टैरो जब आप पढ़ते हो ना तो आपको समझ में आता है कि टैरो आपको सिर्फ एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये एक लाइफ की साइकिल है, ये होगा सबके साथ. तो मुझे इतना तो पता है कि अगर मैं टैरो रीड कर रही हूँ तो इन्हीं कार्ड्स के बीच में इसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है. क्या पता वो आगे हुआ हो, क्या पता वो पीछे हुआ हो. शायद वो टैरो के सीक्वेंस में ना हो, बट क्या पता वो आगे पीछे हुआ हो, बट वो हुआ है. नाउ सेकंड चीज़ ये हो गई कि आप फेक और रियल टैरो कार्ड रीडर्स में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो. Right. राइट. सो अब ये चीज़ ना एस्ट्रोलॉजी में भी आती है. बहुत सारे आपने एस्ट्रोलॉजर्स देखे होंगे, बहुत सारे लोग मेरे पे एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ज़्यादा पूछते हैं कि आप कैसे बता सकते हो कि ये सही है कि गलत है. हाँ. नंबर वन, मेरे को ये लगता है कि आज के टाइम पे तो एटलीस्ट, बिकॉज देर आर सो मेनी सर्टिफिकेट्स जो आपको पढ़ के मिलते हैं. फर्स्टली चेक ऑन देयर बैकग्राउंड, क्या उनके पास सर्टिफिकेट्स है. समबडी हु इज सर्टिफाइड विल नेवर बी हेजिटेंट टू शेयर देयर सर्टिफिकेट. राइट. आप मेरे से पूछोगे मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ, वो देखिए हमने आपके ऑफिस क्योंकि वो लेजिट है. राइट. राइट. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. बट हाँ, ये होता है कि कई सारे हमारे जो मेरे भी गुरु हैं उनके टाइम पे नहीं होते थे. अच्छा. तो फिर आप कैसे मान सकते हो कि वो सही है या नहीं है? उस टाइम पे तो नहीं था. बिल्कुल. तो मेरा मानना ये है कि इफ समबडी इज कनेक्टेड टू डिवाइन, आप किसी डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हो तभी आप वो चीज़ चैनल कर पा रहे हो. राइट. तभी आप वो ज्ञान बता पा रहे हो जो कोई नहीं देख सकता. राइट. तो आपके लाइफ में कभी भी हेल्थ इशू और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं होगा. दैट पर्सन वुड बी ग्लोइंग एंड एटलीस्ट अगर रिच ना भी हो तो बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ सस्टेन कर रहा होगा. सो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड सी द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दैट पर्सन. इसलिए मैं कहती हूँ जो ये रोड साइड वाले होते हैं ना उनके पास मत जाया करो. राइट. क्यों? बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं यार इसको इतना ही पता तो अपनी लाइफ क्यों नहीं सुधार लेता. हाँ, ये क्वेश्चन होता है लोगों का. मैं यही चीज़ कहती हूँ क्योंकि वो सही नॉलेज है ही नहीं उसके नहीं है, पास. गलत नॉलेज है. क्योंकि अगर कोई इतनी सुंदर डिविनिटी से या इतनी प्यारी पावर से जुड़ा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पास वो ना हो. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको पहले भी दिया था शायद, ये चीज़ कि सपोज करो एक जगह पे एक पॉट में पानी है और हमें ए पॉट से बी पॉट में पानी पहुंचाना है एंड देन वी हैव अ पाइप थ्रू इट जिसके थ्रू वो जाएगा. दिस इज डिविनिटी, दिस इज यू, आई एम द पाइप कनेक्टिंग बोथ ऑफ यू. बोथ ऑफ. सो अगर मेरी लाइफ में कोई इश्यूज है और अगर मैं आपकी ठीक करने चल रही हूँ, मेरी ऑटोमेटिकली ठीक होगी. अगर वो पाइप गंदा है, पानी यहाँ से यहाँ जाएगा तो पाइप अपने आप क्लियर होगा. बिल्कुल बिल्कुल. ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पाइप गंदा ही रहे. बिल्कुल. तो अगर मैं आपकी लाइफ हील करना चाह रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं या तो ठीक स्टेट में ना हूँ. बहुत सारे लोग ऐसा होता भी है कि बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेट में नहीं होते. उसके लिए मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट देखो कि चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे.
या वो सालों साल उसी स्टेट में, उसी घर में, उसी सिचुएशन में. चेंज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. राइट. सो अगर आपको फेक और रियल में देखना है तो ये 2 क्राइटेरिया ऐसे हैं जो आई फील कि एक स्टैंडर्ड है मेरे लिए तो एटलीस्ट. बाकी इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो जैसे किसी ने किसी पे ब्लैक मैजिक कर रखा है, राइट, किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है और वो आपके पास आता है, तो आपको पता चल जाता है कि किसी ने टैरो कार्ड बता देता है, या आपका ऑरा एक ऐसा पता चलता है कि इसके ऊपर सच्ची में किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, और एक्सरसाइज कुछ भी हो, कुछ भी चीज़ हो, जैसे काम नहीं बन रहे हैं लाइफ में, कुछ पोजेस्ट हो, तो वो पता चलता है टैरो के थ्रू. टैरो के थ्रू. हाँ जी, आप टैरो के थ्रू वो बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो तो आप. आपको फील होती आपको है feel कैसे होता है? अच्छा, मुझे जो चीज़ फील होती है, देखो मेरे परसेप्शन में मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी इतनी पावरफुल है ना कि वो बंदा मेरे सामने तो नहीं बैठ सकता, हिल जाएगा मतलब. वो बैठ नहीं सकता. अच्छा, कैसे? मतलब कोई मार वो कुछ वो भूत आ जाएगा उस पर ऐसा करने लग, नहीं या फिर कुछ नहीं, क्या उसको होगा? कंफर्टेबल फील नहीं होगा. अच्छा, बेचैनी होगी, अनकंफर्टेबल. हाँ, वो तैयार नहीं होगा, वो हेजिटेट करेगा मेरे से बात करने में. मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के देख के बोलूंगी, जिसमें मैं आपसे आई टू आई कांटेक्ट करके बोलूँ आप नहीं डरोगे, वो करेगा ही नहीं. वो इधर उधर देखेगा. क्यों? बिकॉज वॉट आई एम कनेक्टेड टू इज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, एंड पॉजिटिव इज ऑलवेज पावरफुल देन नेगेटिव. राइट. और मैं अगर डेली इतनी मेडिटेशन कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ पावर इतना तो है. इसलिए मुझे लगता है कि मेरे ऊपर इविल आए अगर कोई चाहे भी तो नहीं कर सकता. तो नहीं कर सकते क्योंकि आपने वो अपना ऑरा इतना स्ट्रांग बना रखा है. इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है, राइट. सो मुझे ये चीज़ लगती है कि हाँ, मुझे सेंस ज़रूर है. जैसे हम कभी मार्केट में जाते हैं, यार इतनी जनता है, इतने लोग हैं, तो कहीं कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव जाता है तो मुझे ऐसे फील हो जाता फील हो जाता है कि है. ये, एनर्जी वाइज मुझे पता चलता है, अरे बट इसके So what पीछे I do आपने is- बहुत मेहनत कर रखी है. मैं ऐसे करती हूँ, कट कट कट, कि मेरे ऑरा में वो एनर्जी ना ऐसे आए. कट कट कर निकल जाता है क्या? एक इंटेंशन है बस, अच्छा, अच्छा. साइकोलॉजिकल. दिमाग, सबके खेल दिमाग का ही है. आर यू गेटिंग इट? साइकोलॉजिकली मैंने उसको बोल दिया कि आई एम नॉट इनवाइटिंग यू. बहुत सारे लोग क्या करते भागो हैं यहाँ ना, से. अब जैसे जो लोग होते हैं ना, जो कहते हैं मुझे नज़र लगी है, मुझे बहुत जल्दी नज़र लगती है. जल्दी लगती भी इसलिए, नंबर 1 आपका ऑरा वीक है, नंबर 2 कि आपने बिलीफ बना लिया अपना कि मुझे बहुत जल्दी नज़र लगती है. आप अपने आप को वीक समझते हो. बिल्कुल. मैं इस नज़र में जो नज़र लगती है बात को, तो जैसे घर में मम्मी लोग बताते हैं, दादी लोग, अम्मा लोग बताते हैं, भाई बेटा तुझे नज़र लगी है, तेरी नज़र उतारते हैं, तो वो पता नहीं वो मिर्ची लेके वो फूक मारते हैं, फिर वो मिर्ची जल्दी धुआं छोड़ती है, पट 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 वो बोलते ज़्यादा होता है, तो वो नमक हाथ में लेके. हाँ. अभी जैसे कभी आप तड़का लगाओगे लाल मिर्च का, उतनी तेज नहीं बोलती वो, बट जब मैंने खुद देखा है कि जैसे कभी दादी ने हमारी नज़र उतारती थी, तो उसमें वो मिर्ची बड़ी बहुत जल्दी बहुत तेज धुआं आता है उसमें, और बहुत जल्दी पट 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 बोलती है. तो ये सच, ये चीज़ होती है. ये चीज़ बिलीफ पे मैटर करता है. मैं आपको सही चीज़ बताऊँ, वो चप्पल से भी तो करते हैं लोग. इसका ना मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ कि जब भी आप लेते हो कोई भी एक तरीका, मतलब बहुत सारे तरीके इंडिया में तो खैर बहुत ही हैं. बहुत है. लोग कोई लेदर की चप्पल से करता है, कोई मिर्चें से करता है, कोई सॉल्ट से करता है, ठीक है, कोई पीली सरसों से भी करता है, कोई बत्ती से भी करता है. आपने काफी लोगों को देखा होगा, बत्ती घुमाते हैं और फिर उसको जला देते हैं, तो अगर तेल टपक रहा है जल्दी जल्दी, इसका मतलब नजर लगी हुई है. है ना? सही बात. सबके बहुत अलग अलग तरीके हैं, लेकिन एक चीज आपने स्टैंडर्ड देखी होगी, नंबर 1 कि हमेशा उल्टा घुमाते हैं, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज घुमाते एंड हैं, नंबर 2 7 बारी घुमाते हैं. 7 बारी घुमाते हैं. कुछ भी हो जाए, क्यों है वो? उसका रीजन मैं आपको बता सकती हूँ. नंबर 1, उल्टा उतारने का मतलब आप ढक्कन खोलते हो किसी चीज का तो उल्टा होता है ना, जब लॉक करते होता है क्लॉकवाइज. राइट राइट राइट. किसी चीज को उतारना होता है, निकालना होता है, उल्टा करते उल्टा करते हैं. हैं. तो आप कोई एनर्जी जो आपके ऑरा में है, ऑरा हम मानते हैं कि यहाँ से एटलीस्ट आपका इतनी ऊपर तक का हम ऑरा मान रहे हैं, वैसे तो बहुत बड़ा होता है आपका ऑरा, लेकिन मैं कह रही हूँ इतना, तो वो आपके आसपास से उल्टा घुमाते हैं. और 7 बारी ही क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे मेन स्टैंडर्ड चक्रा 7 होते हैं. 7 है, मैं भी बोल रहा हूँ. चक्रा होते हैं. 7 चक्र. ठीक है जी. और उसके बाद जलाना या फेंकना या बहाना इज अ सिंबोलिज्म ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दैट थिंग. वो चीज साइकोलॉजिकल है कि हाँ भैया वो मेरे साथ नहीं है. आर यू गेटिंग इट? यस. सो अगर आप मेरे से पूछोगे, हाँ कई बारी मेरी भी दिक्कत इतनी आ जाती है कि हाँ मैं भी बोल दूंगी किसी को कि कर दे भाई मेरी भी. लेकिन इतना मेरा बिलीफ नहीं है इस चीज़ में कि क्या वो रियली होता है नहीं होता, मुझे नहीं पता. वो बिलीफ टू बिलीफ, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. और ये फील्ड ऐसी है ना, मैं सबको कहती हूँ कि एक्सपीरियंस करो, जो काम कर रहा है वो कर लो, जो नहीं करो उसे जाने दो. बहुत है यार इस फील्ड में, इतना है कि आप कभी लर्न नहीं कर सकते, किसी को समझा भी नहीं सकते.
मतलब कोई लिमिट नहीं है इस चीज़ में। कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन की नॉलेज नहीं है। आप साइंस पढ़ने जाओगे ना, साइंस में भी एक एंड आ जाता है, क्योंकि वो एक ह्यूमन डिराइव्ड नॉलेज है। राइट, दिस इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी ह्यूमन, सो दिस इज एंडलेस, दिस इज लिमिटलेस। कोई एंड ही नहीं इस टॉपिक इसकी स्टार्टिंग कुछ नहीं होती, इसकी एंड कुछ नहीं होती। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि बट आपकी स्टार्टिंग क्या थी, कौन सा ऐसा दिन था जिस दिन आपको समझ में आ गया कि ये करना है? मैं कहती हूँ इसकी स्टार्टिंग थी ही नहीं, और ना ही इसका कोई एंड है। दिस इज अ फील्ड लाइक दिस, क्योंकि ये मैन मेड नहीं है, दिस इज लिमिटलेस। राइट। और सबसे ज़्यादा लाइक मेरा क्वेश्चन था कि मोस्ट पावरफुल कार्ड कौन सा होता है डेक में, ये बताएंगे आप जनता को? Most पावरफुल, powerful? हाँ, कार्ड। मेरी नॉलेज में ना हाँ, डेथ कार्ड होता है, अच्छा, ठीक है? एक कार्ड होता है, उसका नाम है द डेथ। अच्छा। सो बहुत सारे लोग उसको देख के घबरा जाते हैं। अच्छा, वैष्णवी, शिट, डेथ आ गई, अब क्या, अब क्या, क्या मैं मरने वाला हूँ, कि क्या होने वाला है, लाइक डेथ कार्ड आ गई। तो मैंने कहती हूँ चलो रीडिंग टू रीडिंग वो तो डिफर करता है कि क्या चीज़ है, किस बारे में। मेरे लिए डेथ कार्ड इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज डेथ कार्ड शोज यू ट्रांसफॉर्मेशन, और कोई रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। दैट ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स दैट यू आर सो मच एट द रॉक बॉटम कि इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। सो मुझे उस कार्ड में एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि अच्छा, आप जाओगे तो यहाँ से ऊपर ही जाओगे, अच्छा। इससे और नीचे नहीं जा सकते। सो फॉर मी द मोस्ट पावरफुल कार्ड अगर किसी के रीडिंग में भी आता है तो मुझे खुशी भी होती है अगर किसी के लिए आता है डेथ कार्ड। एटलीस्ट मुझे पता है कि हाँ बंदा अगर रॉक बॉटम में भी है, लेकिन अगर जाएगा तो इससे ऊपर ही जाएगा, उससे ऊपर ही नीचे नहीं जा सकता। सो फॉर मी आई फील कि काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैसेज है ये कार्ड, बट बहुत लोग बहुत गलत तरीके से लेते हैं। डेथ कार्ड। बिल्कुल डेथ कार्ड। राइट, राइट। राइट। अच्छा। और एक चीज़ आजकल ना बहुत ट्रेंड में चल रही है, लव हीलिंग, फाइनेंशियल लॉस हीलिंग, यस। एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब बहुत एज यू आर अ हीलर, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये क्या होता है, मतलब हील करके फाइनेंशियल अगर किसी को लॉस हो रखा है, या फिर लव रिलेशनशिप है उसका एंड हो रहा है, या फिर कुछ गलत फेस चल रहा है उसका, तो सब ठीक हो जाता है हीलिंग से? सो जब मैं हीलिंग करने बैठती हूँ या मैं किसी की करती भी हूँ, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं कभी किसी को ये नहीं बोलती कि मैं तुम्हें हील करने वाली हूँ। मेरे अगर आप किसी भी क्लाइंट से भी पूछोगे ना कॉल करके, वो कहीं कभी बोलती ही नहीं है, कि मैं कभी आपको अश्योरेंस ही नहीं देते। मैं कुछ नहीं बोलती, मैं कहती हूँ बैठो, रिजल्ट अपने आप बताएंगे, क्योंकि मैं सही में हील नहीं कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ मैं करती क्या हूँ व्हेन आई एम हीलिंग। देयर इज अ बॉडी, हम सबकी है। For me and for this universe, it is infinitely capable to heal itself. कट लगता है हाथ में, बैंडेड नहीं भी लगाओगे तो भी ठीक होगी। अगर कभी पैर टूट जाए ना, हड्डी अपने आप जुड़ जाएगी। प्लास्टर उसको जोड़ नहीं रहा है, सिर्फ एक फ्रेम दे रहा है कि वो जुड़े एक स्ट्रक्चर में। बॉडी अपने आप हील कर रही है। सो व्हाट आई डू इन हीलिंग इज कि एक प्राण ऊर्जा हमारे थ्रू 24/7 365 डेज चलती ही रहती है जब तक आप जिंदा हो। एंड उसकी एक बहुत प्यारी क्वालिटी ये है कि जब तक वो आपके थ्रू फ्लो करेगी, वो आपको कंटिन्यूसली हील करेगी, रिजुविनेट करेगी। अब कोई बंदा जो क्राइसिस में है ना, उसके लाइफ में उस एरिया पे एक ब्लॉक आ जाता है। अब वो ब्लॉक इमोशनल हो सकता है, जैसे पैसे से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का ना इमोशनल कनेक्ट होता है। कोई अगर गरीब फैमिली से ग्रो अप हुआ है तो उसका बहुत इमोशनल एक रीज़न है पैसे से जुड़ा हुआ। बहुत सारे लोग हेट मनी जस्ट बिकॉज गरीबी थी बचपन में। आर यू गेटिंग इट? उनका परसेप्शन मनी को लेकर अच्छा नहीं होता। सो व्हाट आई डू इज आई टेक ऑफ दैट ब्लॉकेज। मैंने सिर्फ रास्ता बनाना है उस प्राण ऊर्जा को फ्लो कराने के लिए। हीलिंग अपने आप हो रही है। अच्छा। सो व्हाट आई एम रियली डूइंग इज, आपकी लाइफ में फिजिकल हो चाहे वो कोई और लाइक सिचुएशनल सर्कमस्टांस हो आपका कि आपको उसी में हीलिंग चाहिए, तो मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ वो ब्लॉक हटा दूंगी। लाइफ गोज ऑन, फ्लोज थ्रू यू, वो अपने आप हील करेगी आपकी लाइफ को। तो हीलिंग भी तो कई लाइक हीलिंग भी तो कई प्रकार की होती है। साउंड हीलिंग हो गई, रेकी हीलिंग हो गई, रेकी हीलिंग। तो फिर ये सब क्या है, क्या डिफरेंस है इन चीज़ में? इस सब में ना डिफरेंस सिर्फ मीडियम का ही है, तरीके अलग अलग हैं बस। अच्छा। तो जैसे हमारे 7 चक्रास हैं हमारी बॉडी में, तो आपको से पता चलता है कि हर चक्रा का अलग तरीका होता है हील करने का, कि आपको पता चलता है कि किस चक्र की क्या ब्लॉकेज है, तो उसका हीलिंग करने का जो तरीका है हर चक्रास का डिफरेंट रहता है। ओके, सो
बेसिकली जिस आप तरीके से हील कर रहे हो ना, वो आपका मेथड सेम रहता है. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे अगर मैं प्राणिक हीलिंग के थ्रू आपको हील कर रही हूँ, सो वहाँ पे आपका एक सिस्टमैटिक आपको एक मेथड बताया जाता है कि यू नीड टू, जैसे एक लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ग्रैब द नेगेटिविटी एंड थ्रो इट इन सॉल्ट वाटर. सो अगर आपका मेरे को कोई भी चक्रा क्लीन करना है तो मैं सेम टेक्निक से ही आपका वो चक्रा क्लीन करूँ. ग्रैब द नेगेटिविटी एंड थ्रो इट इनटू द सॉल्ट वाटर. ओके. बट ये मैंने बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझाया, ऐसा नहीं होता, इतना ऐसा आसान नहीं होता. ग्रैब आप एनर्जी Right. पकड़ के फेंक नहीं सकते, राइट? सो ये एक तरीका हो गया. साउंड हीलिंग में साउंड की वाइब्रेशन से बंदा हील होता है, लेकिन कभी आप ध्यान से उस साउंड हीलर को पूछोगे तो आपको बताएगा कि ऐसी कोई भी साउंड नहीं है, इट इज एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी. ओके. जो वो बजाते हैं आपका सिंगिंग बोल, वो बोल के अलग अलग आपने देखा होगा साइजेस होते हैं, छोटा मैंने खुद ली है साउंड हीलिंग. राइट. तो जब आप उसके बैक में पढ़ोगे ना, साउंड हीलिंग आपने ली है अगर, तो हाँ. सिंगिंग बोल अगर आपके घर पे है तो उसका पीछे पढ़ोगे तो आपको बताएगा कि कितने फ्रीक्वेंसी का है वो. एंड आई वांट यू टू डू इज, व्हाट आई वांट यू टू डू इज, उस फ्रीक्वेंसी को आप सर्च करके देखना कि यूनिवर्स में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं. तो आपको समझ में आएगा हाँ भाई चीज़ें तो हैं जो एग्जैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं. सो नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज, आप उसको बजा रहे हो, आपकी बॉडी भी एक फ्रीक्वेंसी है, आपकी बॉडी भी एक वाइब्रेशन है, इट गेट्स इन ट्यून ऑफ दैट, राइट. एंड दैट इज हाउ वी कॉल कि साउंड हीलिंग होती है. ऐसे ही बहुत सारे मेथड्स हैं यार. फिर से मेरा वही बात है, एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस करो. जो काम आया वो रख लो, जो नहीं आया उसको जाने दो. इट इज एज सिंपल एज दैट. राइट. कोई आपका सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हो टैरो कार्ड में, एस्ट्रोलॉजी, कोई आपका क्लाइंट ऐसा है और कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसे इम्पैक्ट पड़ा हो, आपको भी लगा हो कि हाँ, क्योंकि ऐसे ऐसे बोलते हैं कि बहुत हाँ सारे लोग बताए कि सामने वाले की एनर्जी आ एनर्जी जाती आ है, जाती है. बहुत ही वर्स्ट कोई अपना एक्सपीरियंस आप बताएं. फिर आप खुद को अपने आप को हील करते हो उस चीज़ में. ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो आपकी लाइफ में? यार मेरे को ना इतना ज़्यादा तो मेरे को, वैसे मैं सही बात बताऊँ, ऑनेस्टली बताऊँ, अब ये गॉड्स ग्रेस है कि क्या है, आफ्टर एवरी सेशन आई डू नॉट रिमेंबर व्हाट आई सेड. अच्छा, आपको कुछ भी याद नहीं रह जाता है? कुछ भी ऐसे नहीं कि बिल्कुल बैठे थे तो बिल्कुल याद नहीं है, बट क्या मैंने आपको एडवाइस दी, क्या मैं आपको बोल रही हूँ, वो सिर्फ आपको ही सेंस बनेगा. मुझे शायद उस चीज़ का सेंस ना भी बने. और अगर आप मेरे से 4 दिन बाद पूछोगे ना कि तुमने कुछ भी याद है तुम्हें कि क्या वर्ड बोले थे, तो मुझे नहीं याद रहता. आर यू गेटिंग इट? सो मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ वो सब चीज़ें जो इन बिटवीन रीडिंग होती. बट देयर इज़ वन रीडिंग, वो मेरे प्रोफेशनल लाइफ की पहली रीडिंग भी थी और इतनी आई ओपनिंग थी कि बहुत अनबिलीवेबल एक इंसिडेंस था वो. एंड द थिंग इज कि इसके बारे में मैंने इससे पहले शायद कभी बात की भी नहीं है. अच्छा. ओके. राइट. सो मेरे साथ में जो रीडिंग लेने आए, दैट वाज अ यंग बॉय, मेरे पास आया एंड ही वाज लाइक कि थोड़ी सी ना मेरी रीडिंग अलग है, क्या आप कर पाओगे? मैंने कहा, उस टाइम में नई थी तो पे भी बहुत कम लेते थे, 100 रुपये ले लिया, एक घंटा बिठा के कुछ भी पूछ रहे हैं, 100 रुपये दे रहे हैं उस चीज़ के. तो हमारी भी प्रैक्टिस होनी होती थी उस टाइम पे, तो हमने कहा चलो कर लेते, कोई नहीं. तो मैं बैठी, मैंने कहा हाँ जी जितना हो पाएगा उतना बता देंगे. सो ही सैट देयर इन फ्रंट ऑफ मी और आई जस्ट रिक्वेस्टेड, मैंने अपनी डेक हाथ में पकड़ी, टैरो डेक, एंड आई जस्ट रिक्वेस्टेड कि जो भी हो ना बस क्लियरली आंसर मिल जाए जो भी चीज़ का है. मुझे नहीं पता मैं इसकी दिक्कत सॉल्व कर पाऊंगी, ये क्या इसकी दिक्कत है, बट कुछ आउटकम ज़रूर देना है इस चीज़ का. तो बंदा मुझे कहता है कि ही वॉज अ पार्ट ऑफ अ सिंगिंग बैंड, वो एक सिंगिंग बैंड का पार्ट था. ओके. उसने वो बैंड छोड़ा, वो एक जो भजन कीर्तन करते हैं ना लोग, उनके साथ चला गया. अच्छा, बैंड से भजन कीर्तन में चला गया. उन्होंने कहा कि हमारे को भी मतलब गिटारिस्ट या फिर तबला प्लेयर की हमारे को नीड है, वो दोनों बजाता था. उसने कहा कि मैं आपके साथ आ जाता हूँ करके. सो देयर वाज दिस वन एंटिटी जिससे ये बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया था, एक लिविंग पर्सनैलिटी जिससे बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया था उसी ग्रुप में. तो वो उनके साथ ही जाते थे, सब लोग अपना परफॉर्म करके फिर आ जाते थे वापस, एंड देन सब लोगों ने रेस्ट वगैरह करते थे. And this person believed that that person was Sai Baba. साईं बाबा. Yes. So he claimed right in front of me कि मैंने साईं बाबा के दर्शन किए. अब मैं टैरो कार्ड खोलूं, मतलब लाइक मेरा वीडियो कॉल पे चल रहा था तो उसको पता नहीं था कि मैं शफल कर रही हूँ. अच्छा, वो वीडियो कॉल पे चल रहा था, वीडियो कॉल पे चल रहा था, 1-on-1 नहीं था. ओके. उसको पता नहीं चला. मैं नीचे से, क्योंकि मुझे भी कंफर्मेशन लेनी थी, स्टार्टिंग में ना थोड़ी हेजिटेशन भी होती है. मेरी पहली रीडिंग थी, आप ये सोचो मेरे करियर की पहली रीडिंग थी, वो मैं किसी और के लिए पढ़ रही थी, तो मुझे हेजिटेशन भी थी. मैंने कहा एक काम करती हूँ,
मैं कंफर्म कर लेती हूँ टैरो के थ्रू ही। मैंने फटाफट बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, मैंने कहा हाँ ठीक है सही बोल रहा है उसे। मैं नीचे शफल किया, मैंने कार्ड्स अपने अच्छे से, और मैंने निकाला, मैंने कहा क्या ये सच बोल रहा है? कार्ड्स कहते सच बोल रहा है। अब मैं हिल गई, मैंने क्या बात कर रहा है भाई सही में। तो मैंने फिर और इम्पोर्टेंस दी उसकी बात को कि वो क्या कह रहा है। फिर वो कहता कि अभी कुछ मंथ्स पहले ही मैंने ऐसे करके उनसे एक रिक्वेस्ट की कि अगर आप, मतलब उन्होंने कुछ बात उनको बोली होगी, कुछ बात की होगी उनसे, तो इसको लगा कि वो छोड़ के जाएंगे। तो उसने कहा कि लेकिन जहाँ भी जाओगे ना मुझे लेके जाना अपने साथ। और उसी रात वो बंदा वहाँ से गायब हो गया, नो मोर टू बी सीन। अच्छा। एंड ये बंदा इतने ज़्यादा डिप्रेसिव मोड में क्यों है? कहता कि इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी मैंने आज दिन तक ना उनकी रिकॉर्डिंग की, ना किसी और ने उनकी रिकॉर्डिंग की, ना मेरे पास फोटो है, ना उनके किसी सत्संग की फोटो है। सो दैट्स वाई दैट पर्सन, उसको मेंटली वो हिल गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं इतनी यंग जनरेशन का बच्चा, मैंने कभी नहीं ली। इतना मुझे उस इंसान से लगाव हो गया लेकिन फिर भी नहीं ली। मैंने कभी उनसे उनका नंबर नहीं मांगा। मैं इतना लीन हो गया था उनके साथ रहते रहते कि मैं सब भूल गया, खो गया। सो या अब वो रीडिंग ना कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी इफेक्ट इसलिए की कि मैं आइडल वर्शिपिंग में नहीं बिलीव करती, जैसे आपने बताया मूर्ति पूजा में नहीं होता मेरे को। अच्छा। बिलीव ऐसा नहीं आता। उस टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं था। उस टाइम मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी की भी जर्नी स्टार्ट की थी, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे वाय थे, क्यों 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 क्यों। तो मैं इस तरीके से हिल गई कि यार टैरो भी कह रहा है कि हाँ देखा हुआ है, और सच ही बोल रहा है बंदा, झूठ नहीं बोल रहा है बिल्कुल भी। और ऐसा सच कि तीनों कार्ड्स पॉजिटिव बता रहे हैं। अच्छा। रीअश्योरेंस की भी एक रीअश्योरेंस होती है ना, तो वो मुझे कार्ड्स दे रहे थे। सो आज दिन तक मेरे पास वो क्लाइंट दोबारा नहीं आया। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे नहीं पता उसका अल्टीमेटली हुआ क्या। शायद उसने कुछ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मुझे याद नहीं रहता मैंने क्या बोला था उसको रीडिंग, मुझे सही में याद नहीं है मैंने क्या बोला था, कैसे वो रीडिंग एंड हुई थी। बट ये एक सीन ऐसा है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बैड एक्सपीरियंस था, बट एक बहुत अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था जो शायद मैं अपने लाइफ में, ये नहीं होता तो कभी शायद एक्सपीरियंस नहीं कर पाती। अच्छा। तो ये 3 कार्ड का फंडा क्या होता है? केवल सभी बोलते हैं 3 कार्ड पिक करो, कोई भी 3, 1 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, राइट। 3 कार्ड का ही क्यों फंडा, क्या फंडा होता है इसमें? सो टैरो का ना एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे हर चीज़ के एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे आप पढ़ते भी हो तो उसमें भी आपको रूल्स या फॉर्मूलाज बताए जाते हैं, गेटिंग इट। वैसे ही टैरो में ये होता है कि आप 3 कार्ड इसलिए पुल करते हो कि वो आपको कंफर्मेशन देते हैं। वो 3 कार्ड एक बेसिक है, इस बेसिस पे 3 कार्ड्स के बेसिस पे, वरना स्प्रेड्स तो बहुत हैं। 11 कार्ड के भी स्प्रेड्स होते हैं, ठीक है, इनफैक्ट 48 कार्ड के स्प्रेड भी होते हैं। आर यू गेटिंग इट? बट एक बेसिक जो होता है ना, जहाँ से शुरू होता है, कभी 1 कार्ड और 2 कार्ड की कोई रीडिंग नहीं होती, 3 से ही शुरू होता है, एंड देन इट गोज अप टू बहुत सारे कार्ड्स, स्पेसिफिक नंबर्स हैं। 21 कार्ड्स का भी एक स्प्रेड होता है जिसमें आप 21 कार्ड्स पुल आउट करते हो। अच्छा। बट हाँ, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो 3 से शुरू होता है। तो यार बड़े से बड़े जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल हैं, कुछ ही नहीं चाहिए लाइफ में, सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, गर्लफ्रेंड्स हैं, सब कुछ है और बढ़िया लाइफ चल रही है, स्मूथ लग रही है, तो क्या वो भी टैरो कार्ड रीडिंग कराते हैं? वो मुझे लगता है कि, मुझे नहीं लगता उन्हें ज़रूरत है, या लोग ऐसे लोग हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल हैं, या वो आते हैं टैरो कार्ड्स के लिए? टैरो कार्ड्स के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। द थिंग इज कि जितना आपको हाइट मिलती है ना, एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। पैसा भी आता है तो वो एक कीमत पे आता है। जरूरी नहीं है कि पैसा पैसे की कीमत पे आए, कई बार वो मेंटल पीस की कीमत पे आता है। आर यू गेटिंग इट? तो लोग मेंटल पीस के लिए आते हैं हमारे पास सब कुछ है बट कि मेंटल भैया पीस सब है, ये नहीं है, मेंटल पीस नहीं है। या सब है जैसे आपने बोला, पैसा है, गाड़ी है, बीवी है, बंगला है, हेल्थ नहीं है, हेल्थ नहीं है। बट सब कुछ है, हेल्थ भी है, सब कुछ है, मेंटल पीस भी है, सब कुछ है, बट ऐसा कभी जिंदगी में होता नहीं है कि यार ऐसा तो कभी कि सब कुछ, ऐसा तो कभी होता नहीं है। बट स्टिल आई फील कि वो लोग ना फिर स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड ऑलरेडी हो जाते ऑलरेडी हो जाते हैं घर में। हैं। जो लोग इस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, जैसे आप कह रहे हो जो लेवल आपने बताया वो यहाँ पे अगर मेरे लिए, तो इस लेवल पे आने के लिए भी आपको उस फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ता है। आप वो जेलेसी, हेट्रेड लेके आप इतना ऊपर कभी आ ही नहीं सकते। तो बंदा ऑलरेडी एक एक्सटेंड तक हील हो चुका है, उसको जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। नाइस। क्या पता उसने वो सेल्फ हीलिंग खुद ही की हो, क्या पता उसको खुद ही समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक टैरो कार्ड में जो कप्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ओके, सो आपके कप्स अलग अलग एस्पेक्ट में अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। आर यू गेटिंग इट? जैसे ये अगर आप जनता को बताएं कि लाइक कप्स पूरा कप्स प्रॉपर। के लिए हम इमोशंस के लिए भी कहते हैं।
हाँ ठीक है, कि कप आपका इमोशन है, हाँ सिमिलरली वॉन्ड आपके एक्शंस हैं, पेंटिकल्स आपका पैसा है, स्वॉर्ड्स हम लोग कहते हैं ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी अग्रेशन से भी रिलेट करते हैं। बट अगेन जैसे मैं कह रही हूँ ना, टैरो कार्ड अगर आप समझोगे कि सिर्फ कप से आप समझ जाओ, टैरो कार्ड पूरी चीज़ इन इटसेल्फ इज सिंबॉलिक ऑफ समथिंग। अगर एक कप है, उसमें कप के साथ पानी है और पानी रुका हुआ है, दैट मीन्स स्टिल इमोशंस। बट अगर वो पानी पीछे बह रहा है, इसका मतलब फ्लोइंग इमोशंस, उस बंदे को दिक्कत नहीं हो रही। नहीं एक कार्ड होता है जिसमें 2 पेंटिकल्स बने हुए हैं और ऐसा एक इनफाइनाइट साइन बना हुआ है, जिसको हम 2 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं। उसके 2 हाथ में 2 पेंटिकल्स हैं, दैट मीन्स ही इज जगलिंग बिटवीन मनी। कहाँ खर्चूं ना खर्चूं, दूं या ना दूं। आर यू गेटिंग इट? लाइक जैसे कुंडलियाँ मिलवाते हैं हम लोग कि शादी हो रही है, शादी से पहले हम लोग लड़का लड़की की कुंडलियाँ मिलवाते हैं, मैच मेकर्स होते हैं, तो उससे कंपैटिबिलिटी पता चल जाता है कि हाँ ये स्कोर है, 36 में से कितने गुण मिल रहे हैं। तो वैसे ही सेम टैरो कार्ड में भी प्रेडिक्शन होती है इस चीज़ की। सो टैरो कार्ड की ना फर्स्टली कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो हम प्रेफर करते हैं कि ना करें। नंबर 1, लव और अरेंज मैरिज की प्रिडिक्शन कि होगी कि नहीं होगी, शादी कब तक होगी उसकी प्रिडिक्शन, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रिडिक्शंस, डेथ रिलेटेड प्रिडिक्शंस हम नहीं करते। कोई अच्छा टीचर आपने कहीं से अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस पुल आउट करो। Okay. क्यों? बिकॉज दिस इज इन द हैंड्स ऑफ नेचर। ये बिल्कुल नेचर के हाथ में वाली चीज़ है, आपको नहीं छूना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी ऑन द अदर हैंड डज गिव यू दैट अपर हैंड कि आप कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी एस्ट्रोलॉजी इज मैथ। राइट तो अगर फॉर्मूला है तो कर तो लोगे ही, बट स्टिल अब जैसे एस्ट्रोलॉजी में एक लाल किताब आती है, उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताऊंगी कि वो लाल किताब आई कहाँ से, किसने लिखी, क्या हुआ वो। सो उस लाल किताब में ना बहुत क्लियरली लिखा है कि अगर तुमने किसी की डेथ प्रिडिक्शन बता दी तो तुम्हारे साथ क्या होगा। अच्छा ये सब चीज़ें लिखी है उसमें? उसमें लिखा हुआ है, उल्टा तुम्हारे साथ कुछ गलत ठीक हो है, जाएगा। हाँ, वो चीज़ आपको इफेक्ट करेगी। आपने किसी को इस चीज़ के बारे में बता दिया तो क्या होगा, मतलब जो मैंने आपको भी चीज़ें बताई उनके रिलेशन में कोई भी एक्सट्रीम केस, या आपको पता है आप जेंडर प्रिडिक्ट भी कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी से। इफ़ यू कैन गिव मी अ करेक्ट टाइम ऑफ कंसेप्शन, आप मेरे को एक एक्यूरेट डेट दे सकते हो कि इस दिन वो बच्चा कंसीव हुआ था, आई कैन गिव यू द जेंडर ऑफ दैट बेबी, बट दैट इज ऑल्सो इलीगल स्पेशली इन इंडिया। सो उसका भी कॉन्सिक्वेंस है उसको। अच्छा उसमें भी ऐसा होता है? Yeah. वो एस्ट्रोलॉजी से भी बता सकते हो? राइट। और हमने जितना देखा है हमारी जनरेशन में, अब तो नहीं लेकिन सालों साल पहले जो हमारे गुरु के गुरु होते थे, उस टाइम पे लोग ना इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। लाल किताब क्या होता है यार, कुछ नहीं होता। उन्होंने करके देखा, वो चीज़ें हो गई उनके साथ। सो अब हम इसलिए नहीं करते कि हमने वो देखा हुआ है, और हमने नहीं देखा तो हमारे गुरु ने वो देखा हुआ अपनी आंखों से कि भाई होता है। इसलिए वो हमें ये भी कहते हैं कि कभी ऐसा आ भी जाए तो जाने अनजाने में भी नहीं करना इन सब चीज़ों की रीडिंग, ठीक है। बाकी कंपैटिबिलिटी आप टैरो के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू, एनर्जीज के थ्रू उस मोमेंट की बता सकते हो। टैरो इज वेरी डायनेमिक, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर एनर्जीज, आपकी किस टाइप की एनर्जीज है। एस्ट्रोलॉजी इतनी ज़्यादा, एस्ट्रोलॉजी डायनेमिक नहीं होती, वो एक बहुत लेजेंड चीज़ है। न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी भी चेंज नहीं होती as such. Okay. Yeah. तो लोगों को कितनी बार अपने टैरो कार्ड रीडिंग करा लेनी चाहिए? लाइक मंथली, हफ्ते में एक बार, कितना? आई फील कि नंबर 1, एक तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, राइट। पर्सन टू पर्सन। कभी महीने में 4 सिचुएशंस आ रही है तुम्हारी, उसके लिए आ सकते हो अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो। लेकिन अगर एक ही सिचुएशन है और वही सेट ऑफ क्वेश्चंस है तो मैं कहती हूँ एक बार ही पूछो, जब तक वो सिचुएशन चेंज नहीं होती तब तक मत आना। मत आना, पहले वाला चीज़ ठीक करो, फिर क्योंकि एनर्जेटिकली आप उसी लूप में हो ना, तभी वही रेपिटेटिव सिचुएशन हो रही है। अगर एनर्जी बदली होती तो सिचुएशन भी डिफरेंट होती, बिल्कुल। राइट। इन जनरल जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं जिनको दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो एक सिर्फ हेल्प के लिए आते हैं मेरे पास कि यार एक गाइडेंस मिल जाएगी, एक वे आउट मिल जाएगा, तो मैं उनको कहती हूँ मंथ का जो एंड डेट होता है ना, उस दिन आ जाओ अगले महीने की लेने के लिए, ताकि यू गेट गुड इंसाइट अबाउट व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट मंथ और व्हाट यू शुड बी डूइंग, व्हाट यू शुड बी अवॉइडिंग। ज़्यादातर मेरे पास बिजनेसमैन आते हैं, बिल्कुल, मैं भी बोल रहा कि नेक्स्ट मंथ हमने ये इन्वेस्टमेंट करनी है, इनके साथ करनी है, अच्छी जाएगी कि नहीं जाएगी। तो मैं बोलती हूँ यार अच्छा चलो नहीं जाएगी अच्छी, तो कहते हैं अब क्या कर सकते हैं फिर इस चीज़ में। तो मैं कहती हूँ अभी मत करो, रुक जाओ थोड़ा, इस महीने नहीं अगले महीने कर लेना, हो भी जाता है। फिर वो चीज़ मानते हैं, वो चीज़ होती है, वो चीज़ होती है।
अच्छा अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है इसमें, बड़े बड़े जैसे टैरो कार्ड हो गए, खासकर एस्ट्रोलॉजी जो चीज़ है, एस्ट्रोलॉजी इतने होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बिजनेसमैन के साथ ये बिना गोविंदा देखो, मैं देखता हूँ गोविंदा को, कितनी अंगूठियाँ उसने पहन रखी है, कितने धागे हो गए, मतलब ये चीज़ें होती हैं। और मैं देखता हूँ जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो एक पानी का गिलास भी रखेंगे तो पहले अपने एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड जो भी उनके साथ के पंडित या होते हैं तो उनसे पूछ के करते हैं वो। Yeah, और yeah, मैंने देखा है बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, सेलिब्रिटी ज़्यादा हैं। मैं खुद गया भी बॉम्बे में, नाम नहीं लूँगा, मैं गया था एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी के यहाँ गया था, और उसके साथ साथ उनका पंडित जी साथ चल रहे हैं, अब वो एस्ट्रोलॉजर थे क्या थे वो मुझे नहीं पता, बट लोग करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग आज ये दिन है, कब पिक्चर रिलीज करनी है, कब बिजनेस, अभी आपने बताया, तो बहुत मैटर करता है। 80% लोग बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, बिल्कुल उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलाते लोग। बिल्कुल पहले वही अपने उनसे पूछूंगा, होगा ये टाइम हुआ तो करूँगा। सही बात है। सो ये चीज़ ट्रू है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलूँ ना कि सिर्फ सेलिब्रिटीज ही करते हैं, वो ट्रू नहीं है। क्यों? उनके ऊपर लाइमलाइट है, इसलिए आपको उनका पता नहीं, मैं चल ये पा बोल रहा रहा है। हूँ, हाँ। मतलब मैं कहने वाली बात कर रही हूँ कि इतने एक्सट्रीम के जो आप बता रहे हो ना, मुझे लगता है आज की डेट में लेमैन ज़्यादा विश्वास करते हैं इन सब चीज़ों में, और वो ज़्यादा इंटू भी होते हैं उस चीज़ के कि मैं तो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। घर छोड़ने दे, बिल्कुल। आर यू गेटिंग इट? सो ये चीज़ कहीं ना कहीं होती है। बाकी मेरे को लगता है यार, वो बंदा उनके लिए काम कर रहा है, उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो सर आंखों पे चढ़ाओ, क्यों नहीं बिल्कुल। करो। बहुत से बिल्कुल लोग बेवकूफ़ भी बनाते हैं कि भाई बन रहा है, बिल्कुल बनाते रहो बनाते भी हैं, बट फिर वही है जो मैंने आपको 2 क्राइटेरिया दिए थे, अगर वो फुलफिल हो रहे हैं तो आपका बेवकूफ़ नहीं बन रहा नहीं बना सकता। है। और अगर आपको उससे रिजल्ट मिल रहे हैं, जेन्युइनली रिजल्ट रहे हैं। मिल रहे हैं, और लाइफ में आपको पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, तो फिर बढ़िया है, कंफर्मेशन है ये तो। उससे बढ़िया कोई कि चीज़ नहीं है ही नहीं। बिल्कुल। लाइक हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, तो अगर वो आपके साथ टैरो कार्ड रीडिंग या फिर कुछ एस्ट्रोलॉजी कराना चाहे तो व्हाट एग्जैक्टली इज योर फीस? Okay, Ji. So for my tarot card sessions, I take somewhere around 700 to 1,000 rupees for 30-minute session, ओके and then 1,000 rupees to 2,000 rupees for 1 hour session, depending on situation क्या है, and if the time gets exceeded, then you have to charge more. ओके So that is the situation. All in all, I feel कि Instagram पे मेरा पेज बना हुआ है. Mostly I conduct my readings online. Offline मैं avoid ही करती हूँ थोड़ा, and they can DM me whenever, and तो we आप can अपने schedule. पेज के, अपना पेज बता दीजिए किस लाइक So जनता को किस। you can find me at Tarofeet on Instagram, and yeah, that's it. हम भी एक सेशन लेना चाहेंगे, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, 15-15 मिनट का तो मज़ा आएगा। मतलब एक एक दो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हम लोग अपनी ऑडियंस के सामने। Definitely. ऐसा तो नहीं होता ना कि मतलब हम लोग टैरो सेशन केवल प्राइवेट सेशन से होते हैं, या फिर पब्लिकली हम लोग कर सकते हैं, जैसे इफ यू वांट टू डू इट नाउ तो कैन वी हाँ, डू इट? बिल्कुल बिल्कुल। See, till the time you are okay with me speaking and you guys recording it, आप इसको on air करने के लिए you are comfortable, I am good with that. करें? क्या बात है। तो गाइस अभी मयंक भाई और मेरा हो रहा है लाइव टैरो Tarot कार्ड cards. रीडिंग। वाह, मज़ा आएगा। लेट्स डू इट। ऑल द बेस्ट भाई। पत्ते करेंगे राज लाइव। So I'm hoping this is not your first time taking a tarot card reading, is it? दिस इज द सेकंड टाइम। Second time? सेकंड टाइम। Okay. So I would want to keep both of your hands, like ask you to keep both of your hands on the table. अभी पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसके ऊपर आप अपना राइट हैंड रख दो, आपका इसके बाद हम लोग करते हैं, ठीक है? So I would want you to ask anything that you believe in, be it God, goddess, deity, universe, any power that you believe in. Just humbly request them that whatever I'm going to be asking, bring it in clarity. जो भी मैं पूछना चाहता हूँ वो क्लैरिटी में आए, and I get all the answers for whatever that I'm seeking. Okay, जी. Okay, so what do you wish to ask? What do you wish to ask? क्या आपका क्वेश्चन है? माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि टचवुड मेरे को आज तक कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बट कभी कभी आजकल जो चल रहा है ना कुछ बीमारी चल आती रहती नई वगैरह, तो इन फ्यूचर अगर कुछ है ऐसा हेल्थ रिलेटेड जिससे मेरी पूरी हेल्थ खराब हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाऊँ, एक्सीडेंट हो गया, समथिंग लाइक दैट। Okay, let's see. Okay.
देखो मेजर इश्यूज मेरे को दिखाई नहीं देते हैं, बट आई डू फील कि अगर कुछ मेजर होगा भी सो दैट वुड बी मोर मेंटल इन द सेंस कि आपके दिमाग में ही होगा, या किसी चीज़ को लेकर अगर फियर हो गया तो शायद वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसे गिविंग यू एन एग्जांपल कि आपको फ्लाइट से डर लगता है, जहाज़ में जाने से आपको डर लगता है, तो क्या पता वो अपकमिंग ईयर्स में बढ़ जाए। सो अगर किसी चीज़ का भी मेरे को बढ़ता हुआ दिख रहा है तो वो आपका ऑलरेडी साइकोलॉजिकल फियर दिख रहा है। अच्छा। यस, बट कुछ भी मेडिकल नहीं दिख रहा है, इसके लिए ना तो आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने आप ही वो भी ठीक हो जाएगा, बिकॉज आई डू फील कि इसमें प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। आप समझ रहे हो कि आपके प्लैनेट्स आपको मजबूर करेंगे कि आप उस चीज़ को ज़्यादा सोचो, यू विल थिंक अबाउट इट इंटेंसिवली, बट ऑल इन ऑल आई फील दैट योर हेल्थ विल बी गुड एंड मोर ओवर अच्छी इसलिए भी रहेगी क्योंकि इन फ्यूचर आई डू सी यू स्टेपिंग इन टू स्पिरिचुअलिटी इवन मोर। यस। कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा कनेक्टेड हो गए टू अ वेरी डीपर लेवल वेयर यू विल फील कि शायद मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं लाइफ में। आर यू गेटिंग इट? बहुत एक पीसफुल लाइफ लीड करना, यू विल फील मोर कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। सो ऑल इन ऑल आई फील दैट देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है जी, सो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन वुड बी, मेरे को घूमने फिरने का बहुत शौक है, तो मेरे कुछ प्लेसेस हैं, डेस्टिनेशंस हैं, तो वो बता सकता हूँ मैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को LA जाना है और ग्रीस मेरा मतलब बहुत बड़ा सपना है, मेरे को वहाँ पे जाना है, तो वो चीज़ दिख रही है आपको कुछ? Perfect, perfect. Travel, you will travel around the world, not just these two places. When I'm telling you damn straight. हाँ। You will be traveling a lot. और आप बहुत अच्छी पर्सनालिटी से भी मिलोगे। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत एक पब्लिक एंटिटी हो, बहुत फेमस हो। बट ऐसा होता है ना, कई लोग फेमस नहीं होते बट बहुत अच्छे एक रैंक पे होते हैं। Exactly. आप उठना बैठना बहुत अच्छे लोगों के साथ होगा आपका। एंड आई डू फील दैट यू नो अगर आप नेक्स्ट 3 years में काफ़ी अच्छे मूव्स लेते हो अपनी लाइफ में, स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, मूव्स बनाना टू मेक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योरसेल्फ, और जो आ रही है उनको यूटिलाइज करना अगर आप करते हो, विद इन नेक्स्ट 3 years यू विल बी एबल टू ट्रैवल एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस जितनी जगह आपने अभी तक घूमे हो, और बहुत कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। क्या बात बट ट्रैवलिंग इज एब्सोल्युटली ऑन योर कार्ड्स एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। साथ में लेके जाऊंगा किसी को या अकेले जाऊंगा, ये भी बता दो आप। कोशिश करोगे कि सोलो हो, कोशिश आप करोगे कि सोलो ही हो। आर यू गेटिंग इट? कि अब वो चाहे सिचुएशन हो सकती है ऐसी कि ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आपको लगे कि सोलो हो तो ज़्यादा बढ़िया होगा, या उस टाइम पे आपका मन ये हो सकता है कि यार अब बहुत मैंने इधर उधर सब लोगों के साथ घूम लिया, अब थोड़ा अकेले घूम कर आना है। बट आई डू फील कि लोग भी होंगे, अच्छा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम सोलो होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम सोलो होगी, लोग भी होंगे, लेकिन फिर वो ये ना आपका पर्पस बाहर जाने का यही है, औरों से मिलना। हाँ, औरों से मिलना, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका रेडियंस है, जो आपका ऑरा है, उसको और बड़ा करना और फैलाना और लोगों तक पहुंचाना। ठीक है जी, ले आओ कि बोथ ऑफ योर हैंड्स ओवर ना, लेफ्ट हैंड पे हम ये देंगे, राइट के ऊपर रखो। नाउ आस्क एनीथिंग दैट यू बिलीव इन टू ब्रिंग आंसर्स इन क्लैरिटी, वट एवर यू आर आस्किंग फॉर वो क्लैरिटी के साथ है। मुझे आपको देख के हंसी आ गई। यार ठीक है भाई, कर रहा हूँ यार। करता हूँ अभी यार, कर लेता हूँ। ओके, हाँ जी, सो आपका क्वेश्चन क्या होगा? मेरा क्वेश्चन ये होगा कि मेरी लव लाइफ है या नहीं है, या जिंदगी भर में सिंगल ही रहने वाला हूँ। सिंगल तो नहीं है। सिंगल ही हुआ ही मैं, या लाइफ में फिर बस। एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ आपसे, किसी के साथ में होने का मतलब आप क्या चाहते हो कि कमिटमेंट, शादी, व्हाट इज़ योर एम, लाइक लास्ट एम क्या है आपका? कमिटमेंट। कमिटमेंट ही या फिर मैरिज भी? मैरिज तो बात। ओके ओके ओके,
All right. See, definitely there's going to be somebody in your life. ये तो for sure है. ठीक है. But the thing is, उसके लिए you have to transform in such a way जहाँ पे कोई आपको पहचान ना पाए. और ये ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है मेंटली. मेंटली बाय व्हाट, लाइक मेंटली व्हाट डू आई मीन? आपके बिलीव्स, आपके पर्सपेक्टिव, इवन अबाउट लव. जैसे क्या पता आपका एक बिलीफ ये हो कि यार मैं तो सबको प्यार करता हूँ, सब मुझे नहीं करते, लेकिन वो बिलीफ को भी आपको सबकॉन्शियसली रीप्रोग्राम करना पड़ेगा. नाउ देयर आर सर्टेन वेज. ये सोचते हैं कि मैं सबके लिए इतना करता हूँ और सब मेरे लिए इतना कुछ नहीं करते जितना मैं चाहता हूँ. ये तो मेरे से बात करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते आर यू गेटिंग इट? तो जो आपके बिलीव्स है ना, क्योंकि अगर मैं टैरो के अलावा लॉ ऑफ अजम्पशन भी बताऊँ, तो लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि जो आप अज्यूम करते हो वैसे ही प्रोबेबिलिटी बनती जाती हैं, वैसे ही चीज़ें सामने आती जाती हैं. अगर आपको आज के डेट में लगने लग गया कि मेरे बैंक अकाउंट में रोज़ पैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आते हैं, तो आएंगे. अगर आप बोलोगे और आप बिलीव करोगे कि मेरे को हर कोई प्यार करता है, तो आप जिस कमरे में जाओगे आपको प्यार ही मिलेगा. अभी क्या हो रहा है, आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग है कि कोई मुझे प्यार नहीं करते, हैं जिनको मैं अपनी लॉयल्टी देता हूँ वो मेरे साथ लॉयल नहीं रहते. उससे क्या होता है कि आप आगे के स्टेप्स भी ना ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रहे हो अपने लिए ही, कि आज नहीं मिला तो आगे भी कैसे मिल जाएगा, इतने सालों में नहीं हुआ तो आगे कैसे हो सकता है. सो उस रूट लेवल पे अगर आप चेंज करते हो, आई डेफिनेटली सी समबडी कमिंग इन योर लाइफ एंड स्टेइंग देयर. बड़ी बात ये है, आते जाते तो बहुत लोग रहते हैं बट रुकने वाले बहुत कम होते हैं. सो आई सी समबडी कमिंग इन, स्टेइंग देयर. ठहर जाऊंगा. कब तक आएगा वो टाइम फ्रेम? कब तक आएगा वो तो बताओगे आप कब तक है. हाँ, लेकिन फिर आपका सेकंड क्वेश्चन पूरा हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? फिर आपका दूसरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा. मैं निकाल देती हूँ अगर आप बोलोगे तो. नहीं मेरे रहने दो, चलो. राज रहने देते इसके. ओके, नहीं फिर आप कभी और रीडिंग के लिए आना, तो फिर हाँ, ठीक है. तब बताते हैं ये वाला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन मेरा, हाँ मैं दूसरा क्वेश्चन यही पूछूंगा, लाइक हेल्थ, जैसे मैं एक महीने जैसे पूछेगी कोई इन फ्यूचर मुझे कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं होंगे, होंगे तो कैसे, किससे बच के रहने का. इन्फिनिटी भी आया है जिसके बारे में बात कर रहे थे, कुछ तो है. कप और इन्फिनिटी दोनों आ गए वैसे ज़्यादा आपके इसमें. बट अगर आप ध्यान से देखो तो कप भी है, पेंटिकल भी है, स्वॉर्ड भी है, वॉन्ड भी है, इन्फिनिटी भी है. देख रहे हो हाँ, जूम मार भाई. इस कार्ड पे कप है, पेंटिकल है, स्वॉर्ड है, वॉन्ड है, इन्फिनिटी भी है. दिखाता हूँ मैं. और अगर आप देख रहे हो तो ये बंदा क्या कह रहा है, एज अबव सो बिलो. वो एक वॉन्ड ऊपर पॉइंट कर रहा है बट नीचे क्या बता रहा है, एज अबव सो बिलो. जितना ऊपर जाते हो अपने ग्राउंड्स भी याद रखना. आर यू गेटिंग इट? जबकि देखा जाए तो इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं. ये सब क्या है, रिसोर्सेज हो गए, सारी चीज़ें हैं, बट ध्यान रखना, यूटिलाइज करना सीखो रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से. एनीवेज, इस रीडिंग में इस चीज़ का क्या मतलब है, मेजर हेल्थ इश्यूज मेरे को लगता है कि आपको नहीं होंगे, सही बताऊँ आपको मेजर नहीं होंगे, बट आपको इम्यूनिटी रिलेटेड होंगे. आप समझ रहे हो, इम्यूनिटी वीक होना किसी की, जल्दी से एलर्जी हो जाना, ठीक है, या फिर खांसी जुकाम पकड़ लेना, वायरल पकड़ लेना, फीवर पकड़ लेना. उसका मुझे एक परसिस्टेंट पैटर्न दिख रहा है इसमें कि वो आपका लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा. अब इसके लिए आप सप्लीमेंटेशन वगैरह स्टार्ट कर सकते हो. आप किसी से पूछ सकते हो कि एलर्जी जो प्रोन लोग होते हैं वो क्या खा सकते हैं. डेफिनेटली कुछ ना कुछ सप्लीमेंट में ही कमी है, न्यूट्रिशन में ही कमी है आपकी डाइट में. सो आपका मेरे को इम्यूनिटी से रिलेटेड दिख रहा है कि इम्यूनिटी वीक है. वो चीज़ मेजर नहीं दिख रहा है. मुझे नहीं दिख. बट हाँ, ये एक जो पैटर्न है इसको आप ठीक भी कर सकते हो कि जो आप जल्दी यू फॉल सिक, बहुत क्विक इंटरवल ऑफ टाइम में, या जल्दी से कुछ बाहर खा लिया, कभी कुछ हो गया तो. वैसा मुझे नहीं होता, बट जैसे Debating मानसून आता है तो थोड़ा एलर्जी हो जाती है, छींकें आती है. यस, तो आप वो पूछ सकते हो एंड यू कैन डेफिनेटली गेट इट चेक्ड एंड दिस थिंग इज क्योरेबल. एब्सोल्युटली. ठीक है जी. नाउ एक और चीज़ आपने क्या पूछी थी, दैट क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए, राइट, कि क्या अवॉइड किया जा सकता है. यहाँ पे आप अपने आप से ही बचो, सही बात बताऊँ तो, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं अपने लिए ही. कोई आपको रोकने वाला नहीं, आप ही हो. ये तो है. अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बनती भी हैं, लेकिन रोकने वाले आप ही हो. वो काम करे ना करे वो आपके हाथ में नहीं है, वो कभी था भी नहीं, होगा भी नहीं, बट आप उसे लोगे या नहीं लोगे वो आपके हाथ में है. और कहीं ना कहीं वो लिमिटेशन आप अपने ऊपर इम्पोज करते हो.
चाहे वो सेल्फ डाउट हो, क्वेश्चनिंग हो गई, ये सोचना कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरी पोटेंशियल नहीं है इतनी। तो अगर बचना है अपने आप से बचो, अपने लिमिटिंग बिलीफ से बचो। राइट। ठीक है जी। क्या बोलना बाकी आप लोगों को रिव्यूज़ देने हैं, वॉट एवर यू फेल्ट वाइल बीइंग इन द सेशन, जैसा आपको लगा, क्या एक्यूरेसी लगी, नहीं लगी, कनेक्ट फील हो पाया, नहीं हो पाया, सेंस बना, नहीं बना, एनीथिंग दैट यू वुड मैं तो हो पाया थोड़ा कनेक्ट, लाइक सही चीज़ बोली आपने दोनों चीज़ में कि मैं अपने, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मुझे खुद रुकना है। कि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे हमेशा लाइक दोस्त सब आज़ादी दी है, कोई नहीं मुझे रोकता टोकता, बट खुद से मुझे जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ उसके लिए मुझे खुद एक सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। मुझे चीज़ लगी, और लाइक लव के लिए भी जो आपने बताया वो आई एग्री, लाइक मुझे अच्छा लगा सेशन। मेरे को भी लगा कि हाँ सही बताया आपने। एंड कनेक्ट फील हुआ कनेक्ट आपको? फील हुआ। कनेक्ट फील हुआ। आपका रूम का Actually, पहली हाँ, बार- मैं यही बोलने वाला आपके था रूम का भाई। ऑरा बहुत यहाँ पे strong आके है। ना Guys, कुछ- यहाँ कुछ- आना एक बार और हाँ। अपना सेशन जो कि आपको करानी है। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि बस कहाँ बैठे हैं हम लोग। तो ये एपिसोड आज हम यही ख़त्म करेंगे। तो गाइस, ये एपिसोड बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और आप ज़रूर देखिएगा। और किसी को भी लाइक फ्यूचर में टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग करानी है तो आप प्लीज़ वैष्णवी का पेज वैष्णवी बातें करके इंस्टाग्राम में है, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, और आप प्लीज़ फॉलो करिए। और जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और घंटा बजाना ना भूलिएगा। तो आज के लिए ये एंड करते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। आबाद रहिए, बाय।